Hi guys, welcome back to Logity. I hope all of you are doing great, all of you are fine, and I'm really sorry for not posting this video on time. I really shared with you on the community page that what happened in my life. You can go ahead and check that out. But before that, this session is very important for all you CLAT 2022 aspirants. A very happy new year to all of you. And one blessing that I want to give all of you is that you should land in one of the world's India's best law schools, and you should have best futures as whatever you want to do, be it law or anything else. This is my blessing for all of you. And yeah, stay positive. And in today's session we are going to discuss about how to start preparing for CLAT 2022 from January 2022. Even though if 10 days 12 days have gone by, I can guarantee you that even if you start now, you can start your preparation from zero, and that would be a great preparation. So I'm going to give you a 4-month schedule in this video. We're going to see that what should be the sequence of the topics, what should be the sequence of the topics. And I'm going to give you some solid dose of motivation. This dose of motivation should last for next 3 to 4 months, because these 3 to 4 months are really crucial. We need to work hard and we need to achieve our dreams, our goals. And our dream and goal of now is that we need to get into an NLU, right? And in this session I'm going to give you a power packed strategy, the right kind of strategy that you guys need if you want to start your preparation from zero. Let's get started. Yeah guys, welcome to Logiri. I hope you're subscribed to Logiri's YouTube channel and hit that bell notification so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name at I am Logiri. We do pretty motivational stuff out there. If you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Logiri, then do follow us on Instagram. Number one question that everyone has is, can I clear CLAT if I start from now? If I start from January 2022, can I clear my CLAT 2022 exam? And number one problem that most of you have is, number one problem is your board exams. You're saying that we have our board exams plus we have to give our CLAT 2022. Is it possible? Can we clear CLAT with our board exam? Yes, you can. But number one thing that you have to keep in mind is that you have to cover only the important topics. You have to cover only what? Only the important topics, right? Now this I tell all my students that what happened with me. I had my contract exam. Now this is going to be a story. If you want to skip it, you can skip. But yeah, one thing that I want to tell you is that I had my contracts exam and I was chilling. Like, sometimes you just chill. And I forgot, you cannot say forgot. I knew it was my exam, but I took it lightly. And thereafter, when just 24 hours were left, or less than 24 hours were left, I was like, I cannot do it. There's so much of syllabus. And I called my mom and told her that, look, I'll miss this exam this semester. We'll give it in the next semester. My mom said, dude, you have to give this exam, whatever. You get passing marks, but you have to give this exam. I said, how would I do it? She told me, you just cover the most important, only the topics that are important. So now we are left with less time, but we have enough time. We have enough time to cover the important topics, right? So we are going to just cover the important topics. And I must tell you what happened in my story is that I studied. At one point of time, my mother called me up and said that, okay, enough of studies. How much syllabus have you done? I said, I'm done with my all the important topics. Now the other topics are left. What should I do? She said, you cannot do all the topics. You've done the important ones. Just go through them again. Right? Overnight, I went through those topics, revised them again so that I remember what I studied. And dude, I scored the best I could. Like I topped in my batch in that subject. That is what was my score. So when less time is left, what a smart person would do, that we'll cover the most important topics. And that is what you are going to do. That is, you're going to cover the most important topics of each and every section. Now the best part about CLAT is that there is less syllabus. So therefore we have higher chances of covering the syllabus very easily. And number 3 point is that it is more of a skill based exam. Now what is a skill based exam? A skill based exam is that there is less of learning, and there is more of practice.
practice. Now when it comes to learning, you all know, and I also know, that we have to learn our current affairs. We have to learn our current affairs, but in all most of the subjects we have to practice. That is, we have to acquire the skill, the skill of how to solve. We have to acquire the skill of how to solve, and thereafter we have to practice, practice and practice. For example, I'm going to give you an example: your RCs, for example your legal reasoning questions, for example your critical reasoning, for example your maths, right? In your maths, in your DI, you have to learn the formulas, and thereafter it is practice, practice, practice. So the learning part is less, and that is beneficial, because acquiring the skill and practice is easier than learning, because learning takes more time. रट्टा मारने में टाइम लगता है, बट एक स्किल एक्वायर करने में, जो कि मैं आपको बता दूं कि कैसे एक्वायर करनी है, how you have to acquire the skill. Once you know how you have to acquire the skill, you can acquire the skill, and thereafter practice, practice and practice, right? So this is one benefit that we is the one thing that is in our favor, that it is a skill based exam. So are we ready in the chat section to cover the most important topics that I'm going to tell you? And what I want from you right now is, you're going to make notes, right? You're going to make notes, because we are going to note down the syllabus, we are going to note down the books, everything, how to study and everything that we are going to note down. So notes very important, because you cannot afford to forget anything or not do something. So making notes is very, very important, and noting down these points is also very important. They're going to keep you on track. What? Keep you on track, right? So whenever you don't feel like studying, remember this, that I have to cover only important topics. There is less syllabus, so therefore I will be able to, when you feel like yaar nahi ho payega, read this and you will be good to go. So making notes is very important. ये 3 points note कर देने हमने, okay? Now one problem that we noted down in our previous slide is board exams, right? 12th के board exams है, सबके हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के हैं जिन्होंने क्लैट 2021 और जितने सालों में क्लैट हुआ है वो क्लियर किया है, सबके 12th के एग्जाम्स होते हैं. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव देयर 12th एग्जाम्स, राइट? मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, सबके होते हैं, सब क्लैट क्लियर करते हैं. नाउ आई वांट टू टेल यू वन थिंग. Look, I know you have to take out time. You have to take out time, and you have to give some time to your CLAT thing, right? Maybe you have to take out 3 hours. Maybe क्या इतना तो minimum निकालना पड़ेगा. You have to take out 3 hours and give it to CLAT. Now you would say this is impossible, my board exams are there. I want to give you one situation that you should discuss with your parents. I'm going to write this: discuss with your parents, because this is a very important thing. Discuss with your parents. Now there is one situation, two situations that I want to put forward. One is that in 12th you have 95% or 85% or somewhat around 90 or 80%, right? And no seat in any NLU. No seat in any NLU. I'm going to highlight this: no seat in any NLU, right? And the second situation is, what is the second situation? The second situation is that you have somewhat 70%, you have somewhat 70%, right? Or maybe 75% or 80% in your 12th, okay? And seat in an NLU. Right, seat in an NLU. What is better, this or this? Look, if you are a serious CLAT aspirant, this situation is much better for you. And if you're doing CLAT, if you're studying for CLAT only कि अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं, then that's a separate situation. If you're a serious CLAT aspirant, मतलब करना ही law है, बनना ही lawyer है, तो this situation is much more better situation. So if you take out that time from your 12th board studies and give it to CLAT and score well in CLAT as well as in your 12, like 80-85% in your 12th, and get a seat in an NLU, I think this is a very good situation. A lot of people say हमें placement कौन देगा? अगर हमारे 12th में कम मार्क्स है, placement कौन देगा? Hello, I need to you need to remember, I need to remind you guys that not all law colleges are able to get their students placed. Not all law colleges are going to give you that opportunity. So if you land in a good law school, then only you get an opportunity, right? So once you're done with your 12th and you're in an NLU, no one is going to ask you what was your percentage in 12th, because dude, you cleared the CLAT exam and you got here, right? You got there. Now, I want to clear one thing also. 45% is what you need,
right? There is no age limit in CLAT, and 45% is what you need. 45% is what you need, and 40% you need if you belong to SC/ST category, and 45% if you belong to OBC, PWD, NRI, PIO, OCI categories. So it is 45% जो उनको चाहिए. 45% बहुत कम हो जाएगा, but even if you score around 80%, जो कि is not difficult, I have also given my board exams, and I truly know that if you put in a good amount of effort, and if you prepare for CLAT also, 80% क्या उससे ज़्यादा ही आ जाता है जब आप दोनों एग्जाम्स के लिए बहुत शिद्दत से बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हो. सो दिस इज़ वन थिंग, एंड यू नीड टू डिस्कस दिस विद योर पेरेंट्स, बिकॉज इंडिया के अंदर 12th की परसेंटेज और 10th की परसेंटेज बहुत ज़्यादा मैटर करती है आपके रिलेटिव्स के लिए, आपके नेबर्स के लिए, और देयरफॉर आपके पेरेंट्स के लिए, बिकॉज वही डिसाइड करते हैं कि बच्चा इंटेलिजेंट है या नहीं. सो यू नीड टू सी दैट कैन यू गो हेड विद अ लिटिल लेस परसेंटेज और नॉट. ओके. यूजी क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट, मतलब क्लैट का जो आपका LLB का एग्जाम है उसका फॉर्मेट क्या है, ठीक है. आई एम सॉरी आई डिड नॉट अपडेट द स्लाइड. ये 2022 का भी सेम है, मैंने चेक कर लिया था. मैक्सिमम मार्क्स अब 150 2 आवर्स दिए जाएंगे. 150 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क ईच. 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर. अगर आप गलत आंसर करते हो तो 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे, ठीक है ना. अब हम सब्जेक्ट और उसके एरियाज देख लेते हैं. प्लीज ये इसके नोट्स बना लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मेक नोट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. देखिए आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर है, सॉरी इंग्लिश लैंग्वेज का सेक्शन है, उसके अंदर आपके 28 to 32 क्वेश्चंस आएंगे. करंट अफेयर्स के अंदर 35 to 39, इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज. लीगल रीजनिंग के अंदर 35 to 39, लॉजिकल रीजनिंग में 28 to 32, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में 13 to 17. क्वांटिटेटिव टेक्निक्स तो आपका ये मैथ्स प्लस डाटा इंटरप्रिटेशन, राइट. इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आई वांट टू टेल यू कि जो आपका पेपर है वो पैसेज बेस्ड होगा. क्या है? पैसेज बेस्ड पेपर होगा. मतलब पैसेज बेस्ड मतलब हर सेक्शन में, ये जितने भी सेक्शंस हैं आपके, इसके अंदर पैसेजेस होंगे. इवन मैथ्स के सेक्शन में भी आपके पैसेजेस होंगे, एंड फिर उसके बाद क्वेश्चंस होंगे. इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, प्लीज हैव अ लुक एट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ क्लैट 2020 एंड 2021. 2020 एंड 2021 का पेपर आप देख लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है ना. तो पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस आपके पास होंगे. ओके, डिस्कस करते हैं कंप्लीट स्ट्रैटेजी टू क्रैक क्लैट 2022 इन 4 months विद बोर्ड एग्जाम्स फ्रॉम जीरो. बिल्कुल जीरो से आपकी स्ट्रैटेजी, जिसको आप स्क्रैच भी कह देते हैं, फ्रॉम स्क्रैच वाली स्ट्रैटेजी हम डिस्कस करेंगे. नोट्स बनाने बहुत जरूरी है. आई होप आपने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो पिछली स्लाइड में हमने डिस्कस करी है वो नोट कर ली है, बहुत ज्यादा जरूरी है. ओके, स्टेप 1 है कि हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को 15 डेज में खत्म कर लें. जो अभी जनवरी के आपके 15 to 16 डेज पड़े हमारे पास, ज्यादा दिन ही पड़े हैं जब ये वीडियो है, ठीक है ना. तो आपने ये कवर कर लेने हैं जान के अंदर ही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो आपका इंग्लिश का सेक्शन है उसके अंदर पूरे का पूरे सेक्शन में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आते हैं. हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 5 RCs आएंगे जिसके अंदर से 6 क्वेश्चन होंगे, या 6 RCs आएंगे जिसके अंदर से 5 क्वेश्चन होंगे. वैसे ये वाली सिचुएशन होनी बहुत ज्यादा जायज रहती है कि 5 RCs होंगे जिसमें से आपको 6 क्वेश्चंस होंगे, एंड ये आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है ना. तो मतलब अगर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करना सीख लेते हो तो आपका एक सेक्शन जो है वो पूरा हो जाता है. अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने कैसे सीखने, देखिए इट इज वेरी इजी. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो आपके हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है ना. अगर हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो क्लैट टाइप के होता है, उसके अंदर किसी में टोन ऑफ द पैसेज पूछा होता है, किसी में थीम ऑफ द पैसेज पूछा होता है, किसी में पूछा होता है ऑथर क्या अज्यूम कर रहा है. ऐसे ही डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं. मैंने इसके ऊपर वीडियो भी किया हुआ है कि कैसे आप डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. तो अब हमें ये कैसे सीखना है, यू हैव टू डू, यू हैव टू रीड थ्योरी फ्रॉम अ बुक विच इज फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्पेसिफिकली. ये बुक आप GMAT की ले सकते हो, आप IELTS की कोई बुक ले सकते हो, आप CAT की कोई भी बुक ले सकते हो. इस लेवल की बुक लेना जरूरी है बिकॉज इन बुक्स में अच्छी अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करी गई होती है. तो सबसे पहले रीड थ्योरी करोगे, पढ़ोगे, एंड उसके बाद अब थ्योरी पढ़ते हो, व्हाट यू गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट हाउ यू हैव टू सॉल्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, राइट. क्योंकि हमने 12th तक मोस्टली बहुत इजी RC सॉल्व करे होते हैं अपने स्कूल वाले एग्जाम्स में. वी डू नॉट नो कि कैसे ये वाले RC सॉल्व करने. जब हमने पढ़ लिया कि कैसे, जब वो पूछ रहे हैं कि भाई टोन ऑफ द पैसेज बताओ, तो टोन ऑफ द पैसेज का मतलब क्या है वो हम समझ लेते हैं, देन वी आर एबल टू आंसर द क्वेश्चंस करेक्टली. क्लियर है. तो हम थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे,
ठीक है ना। प्रैक्टिस में हम एम करेंगे कि हम एक्यूरेसी मतलब करेक्ट आंसर हमारा आ रहा है, क्या एम करेंगे, करेक्ट आंसर हमारा आए, एंड उसके बाद एक्यूरेसी जब हमारी आने लग जाएगी उसके बाद हमारा एम क्या रहेगा, स्पीड। उसके बाद हमारा एम क्या रहेगा, स्पीड। क्योंकि हम इंग्लिश सेक्शन को क्लैट के जो हमारे 2 घंटे हैं उसमें से सिर्फ 30 मिनट्स हम आरसीज को देंगे, तो हमने इतनी स्पीड बना दी है कि हम अपने कितने आरसीज, 5 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बैक टू बैक सॉल्व कर पाए 30 मिनट्स में। इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। हमने सबसे पहले क्या करना है, रीड थ्योरी पढ़नी है कि कैसे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, स्टेप 1 ये है। और हमारा स्टेप 2 क्या है, प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस कैसे, कि हम 5 आरसीज 30 मिनट्स में सॉल्व कर पाए, 5 आरसीज जो कि आपके कितने, विद 6 क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। अब इसके लिए कौन सी बुक नॉर्मली मैं रेकमेंड करती हूँ, अरुण शर्मा की बुक, ठीक है। आप अरुण शर्मा मीनाक्षी उपाध्याय की बुक आती है, आप किसी और बुक के लिए भी जा सकते हैं, बट आपका लेवल अच्छा होना चाहिए, आईएलटीएस, जीमैट, कैट ऐसा लेवल, राइट। अब एक और चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर चेक कर लेना क्लैट का, बिकॉज आपको पता चल जाएगा कि पैसेज का साइज, लेंथ कितनी होती है, ठीक है ना, लेंथ ऑफ पैसेज क्या है, सो दैट अकॉर्डिंगली आप देख सको कितनी लेंथ है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप जीआरई की कोई बुक लेते हो तो उसके जो पैसेजेस होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं, ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग 5 आरसीज यू कैन गो फॉर सॉल्विंग 3 आरसीज की, हाँ ठीक है, अगर इतने में मेरी स्पीड बन जाएगी, राइट। तो ये आप कर सकते हो। एंड एक और हैक जो मैं यहाँ पे देना चाहती हूँ, टिप देना चाहती हूँ, वो ये देना चाहती हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऑफ क्लैट में से भी आरसी सॉल्व करिए, बिकॉज वो वाला लेवल आपको वही मिलेगा। आरसी सॉल्व करिए एलेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से और क्लैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से, राइट। आर वी गुड टू गो। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के लिए जो मैं आपको बुक रेकमेंड करूंगी उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ओके। वन मोर टॉपिक विच इज जस्ट गोइंग टू टेक 2 days ऑफ आवर्स, एंड जिसको कि आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हो, बहुत सारी वीडियोस होती हैं, ठीक है। फिगर्स ऑफ स्पीच का टॉपिक है, नॉर्मली इसमें सिर्फ 2 to 4 क्वेश्चंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिगर्स ऑफ स्पीच हमने करे होते हैं स्कूल में, सिमिली क्या है, मेटाफर क्या है, वो आपको करना है, क्लियर है इस बात पे। तो ये हमारा स्टेप 1 रहेगा, हमें फर्स्ट 15 days में फिगर्स ऑफ स्पीच और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन किल कर देने हैं। स्टेप 2, जब हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो जाएगा तो उसके ऊपर हम, उसके बाद हम आ जाएंगे लीगल रीजनिंग वाले टॉपिक पे, जो हमारा 30 to 40 days ले लेगा, राइट। नाउ इफ यू आर न्यू टू क्लैट एंड आपको नहीं पता कि लीगल रीजनिंग क्या होती है, तो लीगल रीजनिंग इज वेरी इजी, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी किया हुआ है, तो वो आप चेक कर लीजिए। उसके अंदर क्वेश्चन टाइप भी समझाया हुआ है और हाउ टू सॉल्व ये भी समझाया हुआ है, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट है, ठीक है ना। तो वो वीडियो आप चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पक्का से आपको मिलेगा। नाउ इसके टॉपिक्स कौन कौन से हैं आपके, नंबर 1 इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेरा अपना कोर्स भी है जो आपको बहुत अच्छे से मैंने करवाया हुआ है, जिसके अंदर आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो इफ यू वांट टू एनरोल फॉर दैट कोर्स, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, टॉर्ट्स, क्रिमिनल लॉ एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। अब ये वाला जो टॉपिक है आपको ये कैसे कवर करने हैं, लीगल रीजनिंग का जो पार्ट है वो कैसे कैसे कवर करना है, ये जल्दी से हम समझ लेते हैं, राइट। तो स्टेप 1 जो आपका रहेगा दैट इज रीडिंग थ्योरी, ठीक है ना। आपको थ्योरी पढ़नी है इन टॉपिक्स की, किन टॉपिक्स की, ये जो 4 टॉपिक्स मैंने मेंशन करे हुए हैं। कौन सी बुक में से, आपको एपी भारद्वाज की बुक के लिए जाना है। कौन सी बुक, एपी भारद्वाज, LANLR बाय एपी भारद्वाज। कौन सी बुक, LANLR बाय एपी भारद्वाज। एक उनकी वर्कबुक आती है वो हमें नहीं बाय करनी है, ठीक है ना, वर्कबुक आती है वो हमें नहीं बाय करनी है, ठीक है। आप विली के लिए भी जा सकते हो, कैन गो फॉर विली, एनी, एपी भारद्वाज या विली में से एनी वन बुक, ठीक है। अगर विली के लिए जाओगे तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अलग से खरीदने पड़ेंगे ऑफ क्लैट फॉर सॉल्विंग लीगल रीजनिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है ना, ये करना पड़ेगा। नाउ कॉन्ट्रैक्ट्स जो है, अगर आप एबी भारद्वाज में से पढ़ते हो तो सिविल लॉ के नाम से आपका टॉपिक होगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू रीड थ्योरी, ठीक है, थ्योरी पढ़ना है, मार्क करना है अपना सब कुछ। एंड आपका पर्पस क्या है फॉर रीडिंग थ्योरी, पर्पस क्या है, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना, अंडरस्टैंडिंग। वहां पे आपको लर्निंग, अपनी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आएंगे, नो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस, नो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस। क्या बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे आपके, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड। तो जब आप ये पढ़ रहे हो यू हैव टू अंडरस्टैंड, क्या करना है आपको, अंडरस्टैंड करना है, ये दिमाग में रखना। स्टेप 2, जब आपने ये रीडिंग कर लिया, समझ लिया सब कुछ, स्टेप 2 क्या, जैसे जैसे टॉपिक सॉल्व करते जाओगे आपको क्वेश्चंस
प्रैक्टिस करने हैं। क्या करने हैं? क्वेश्चंस, लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। अगर आप न्यू हो, लीगल रीजनिंग का मतलब नहीं पता, तो जो वीडियो मैंने बोली है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज देख लेना। आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। क्वेश्चंस कहाँ से? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ क्लैट एंड एलेट ऑफ लीगल रीजनिंग, ठीक है ना? क्लियर है? क्लैट और एलेट के जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसमें से लीगल रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एपी भारद्वाज में आपको मिल जाएंगे, नहीं तो अगर विली की बुक ले रहे हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेपरेटली खरीद कर वहां से आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। चॉइसेस ऑल योर्स, यही आपको करना है। दैट्स इट, यू हैव टू डू, ठीक है ना? एक बार ही आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गई लॉ की, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ आपकी आ गई है, दैट इज व्हाट यू हैव टू डू, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ, ठीक है ना? एड ऑन जो आप कर सकते हो वो ये है कि जब न्यूज़पेपर के अंदर कोई भी लीगल करंट अफेयर्स की न्यूज़ पढ़ो, उसको अच्छे से पढ़ो, उसको अच्छे से समझो, सो दैट अगर आपको उसके बेस्ड लीगल रीजनिंग क्वेश्चंस आ जाए तो वो आप अच्छे से सॉल्व कर पाओ। आप मेरी वीडियोस भी देख सकते हो, लीगल करंट अफेयर्स की वीडियोस, उसका लिंक आपको पूरी की पूरी जो भी सेशंस मैंने लिया उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू फॉर लीगल रीजनिंग। आर वी क्लियर? नेक्स्ट थिंग इज क्रिटिकल रीजनिंग, जिसको हम लॉजिकल रीजनिंग भी बुलाते हैं, या फिर आपका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें ये सब्जेक्ट का नाम आपका लॉजिकल रीजनिंग है, ठीक है ना? अब जो हमने सब्जेक्ट नंबर 1 चूज किया वो हमने करा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, सब्जेक्ट नंबर 2 हमने लीगल रीजनिंग चूज करी। अब हम आते हैं सब्जेक्ट नंबर 3 पे। तो सब्जेक्ट नंबर 3, अब आपकी चॉइस है, आप क्रिटिकल रीजनिंग करना चाहते हो या फिर मैथ्स करना चाहते हो, जिसको आपका जब आपने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखा होगा तो उसमें उसका नाम था क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, राइट? क्लियर है इस बात पे? तो अगर आप क्रिटिकल रीजनिंग यानी कि लॉजिकल रीजनिंग पहले करना चाहते हो तो उसमें आपके ये 4 टॉपिक्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना? यही टॉपिक्स हैं जिसमें से आपको सारा का सारा पेपर आएगा। आर्ग्यूमेंट्स, असम्पशंस, इन्फरेंस, कंक्लूजन, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? ये हमें कवर करने हैं। अब ये और इसके साथ प्लस आपका एक और टॉपिक मैं यहाँ पे ऐड करी हूँ, वो है पजल टेस्ट, ठीक है ना? पजल टेस्ट, ठीक है? अब मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले कि ये कहाँ से आपने कवर करने हैं, ठीक है? नाउ यू कैन गो फॉर एनी बुक, राइट? एनी बुक, ठीक है? आपको एक बुक का पीडीएफ तो मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगा, आप विली के लिए जा सकते हो, देयर मेनी बुक्स, ठीक है ना? बेसिकली जीमैट या जीआरई की किसी बुक के लिए जाना, बिकॉज आपको एक अच्छी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी, ठीक है? अब मैं पहली वीडियोस में एम के पांडे भी बोल चुकी हूँ, बट क्योंकि हमारे पास टाइम कम है तो आप डायरेक्टली एडवांस्ड पे ही जाइए, दैट इज जीमैट या फिर जीआरई की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इफ यू वांट टू बाय द बुक, यू वांट टू जस्ट रीड ऑनलाइन, योर टेक, ठीक है ना? तो ये वाले टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, एंड देन ऑब्वियसली समझने के बाद यू हैव टू रीड द थ्योरी, रीडिंग थ्योरी, एंड देन यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चंस, ठीक है ना? आपको क्वेश्चन सॉल्व करने, टू सॉल्व क्वेश्चन। अगेन हेयर ऑल्सो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर सॉल्व करते हैं क्लैट के तो अगेन आपको वो लेवल पता चल जाएगा, राइट? ये आपको यहाँ से करना है। बुक का नाम भी मैंने बता दिया। पजल टेस्ट जो है वो आपके, उसके लिए आपको वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय आर एस अग्रवाल की बुक खरीदनी है, बाय आर एस अग्रवाल की बुक खरीदनी है, ठीक है ना? उसमें से आपको अपना पजल टेस्ट वाला पार्ट करना है। इसमें मोस्टली आपके जो अरेंजमेंट्स वाले क्वेश्चन होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आपको सॉल्व करने आने चाहिए, बिकॉज 2020 में क्वेश्चंस आए थे, ठीक है ना? 5 क्वेश्चंस आए थे आपके पजल टेस्ट से, बट हमारा सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी कौन सी है? ये है, ठीक है ना? ये हमें करने हैं, एंड दैट इज व्हाट इज द सिलेबस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फ्रॉम योर लॉजिकल रीजनिंग पार्ट। पूरा का पूरा पेपर मोस्टली इसी पार्ट में से होता है, 5 क्वेश्चंस मे बी इस पार्ट में से हो। क्लियर है? ओके। अब मैथ्स, मैथ्स को जिसको हम यहाँ पर क्वांटिटेटिव टेक्निक्स भी बोलते हैं, बिकॉज कमेंट सेक्शन में नहीं तो बच्चे बोलेंगे दी मैथ्स तो है ही नहीं हमारे सिलेबस में। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स आपका मैथ्स प्लस डीआई है, डाटा इंटरप्रिटेशन जिसको हम बोलते हैं। तो आप क्या करोगे? You're going to cover basic maths and then DI, ठीक है ना? सबसे पहले मैथ्स का ये वाले जो टॉपिक्स हैं वो कवर करोगे। अब मैथ्स जो है आप वो करोगे या तो 30 डेज वंडर बाय एस चंद की बुक आती है, 30 डेज वंडर बाय एस चंद की बुक आती है, या फिर 18 डेज वंडर बाय एस चंद की बुक आती है, ठीक है ना? 18 डेज वंडर बाय एस चंद और 30 डेज वंडर बाय एस चंद, एनी बुक वुड गो, ठीक है? वैसे 30 डेज वंडर खरीद लो, वो ज़्यादा अवेलेबल होती है, इसको छोड़ दो, ठीक है ना? 30 डेज वंडर के लिए जाओ, एंड प्लस एडिशन में एनसीईआरटी, एनसीईआरटी की बुक में से, जिसका लिंक अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, सर्कल्स, स्टैट्स, ठीक है? स्टैटिस्टिक्स जिसको बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी,
ठीक है, ये तीनों टॉपिक्स आपको 10th की एनसीईआरटी में से सॉल्व करने हैं। सारी की सारी एनसीईआरटी नहीं सॉल्व करनी, सिर्फ ये 3 टॉपिक सॉल्व करने हैं, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चैप्टर के पीडीएफ मैंने अपनी वेबसाइट पे प्रोवाइड किए हुए हैं, वही सॉल्व करने हैं। बहुत बच्चों को लगता है हमें पूरी की पूरी एनसीईआरटी सॉल्व करनी है 10th की, नहीं, आपको ये नहीं करना है। ये वाली बुक परफेक्ट रहती है बिकॉज इसमें शॉर्टकट्स दिए हुए हैं, सब कुछ बताया हुआ है, और इसमें एक आप फॉर्मूला लिस्ट भी क्रिएट कर लीजिए जिसको आप बार बार रिवाइज कर सकते हैं। वंस यू आर डन विद योर बेसिक मैथ्स 30 डेज वंडर और एनसीईआरटी में से, देन यू कैन मूव टू योर दैट इज डाटा इंटरप्रिटेशन पे जा सकते हो। ठीक है ना, पाई चार्ट, बार डायग्राम, बार ग्राफ, टैबुलर डायग्राम, लाइन ग्राफ, ये सब करना है आपको। एंड इसकी जो बुक है उसका नाम मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एक मिनट। ऑलिवर बोर्ड की बुक आती है, ऑलिव बोर्ड पता नहीं, ऑलिवर बोर्ड, ठीक है, उसकी बुक में से आपको सिर्फ और सिर्फ लेवल 1 सॉल्व करना है, सिर्फ और सिर्फ लेवल 1, ठीक है ना। लेवल 1 ऑफ दीज चैप्टर्स ये सॉल्व करना है आपने, एंड यू आर डन एंड डस्टेड। लिंक आपको बुक का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लीज मैथ्स के लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की मोटी वाली आर.एस. अग्रवाल की बुक मत सॉल्व करिएगा, वो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। प्लीज एनसीईआरटी की बुक में से भी मैथ्स मत सॉल्व करना, सारी की सारी बुक सॉल्व करने की नहीं जरूरत है। वहां पे आप सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम नहीं देने जा रहे हो, क्लैट का एग्जाम देने जा रहे हो। वन थिंग दैट यू हैव टू डू एवरी डे, ठीक है, वन थिंग दैट यू हैव टू डू एवरी डे, एंड जिसका आपको करंट अफेयर्स जो कवर करने पड़ेंगे, वो आपको हॉलीडेज जब आई हैं या जब आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, मतलब अगर आपको 10 मिनट्स भी एक्स्ट्रा मिल रहे हैं ना, 10 मिनट्स भी एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो उसके अंदर आप अपनी करंट अफेयर्स की मैगजीन खोलकर बैठ जाओगे। तो सबसे पहले तो रीडिंग द हिंदू, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ व्हेन यू आर वाचिंग दिस वीडियो यू स्टार्ट रीडिंग द हिंदू। ठीक है, द हिंदू के जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं वो आई पोस्ट एवरी डे ऑन इंस्टाग्राम। मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है @IamLogiri, राइट। I'll try कि I start posting the important news on my website as well, because बहुत सारे बच्चों का इंस्टाग्राम पे अकाउंट है तो वो बहुत ज़्यादा कहते हैं, ठीक है। we'll start doing that. Now the next thing is कि हमें ड्यूरेशन एंड वन मोर थिंग प्लीज़, करंट अफेयर्स के अंदर जो लीगल करंट अफेयर्स हैं जो मैंने वीडियोस करी हुई हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग के, मतलब लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस आपके लीगल करंट अफेयर्स बेस्ड ना आ जाएं, और आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो लीगल करंट अफेयर्स की जो वीडियोस हैं उनको सुनो, जब भी आपको टाइम मिले एक एक करके वीडियोस देखना स्टार्ट कर दो, राइट। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड सबसे बड़ा क्वेश्चन इज ड्यूरेशन, कितना कब की कितनी ड्यूरेशन की हमको करंट अफेयर्स कवर करनी है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है, ठीक है। यू हैव टू कवर योर करंट अफेयर्स फ्रॉम जनवरी 2021 टिल द मंथ ऑफ एग्जाम इन 2022, ठीक है ना। तो आपको अप्रैल 2022 तक की करंट अफेयर्स कवर करनी रहेंगी जनवरी 2021 से। आई नो दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। नाउ आई वांट टू टेल यू कि आपको कैसे कवर करना है। देखिए, यू हैव टू रीड मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन। तो अभी से, मतलब अभी जनवरी चल रहा है, आप जनवरी में ये वीडियो देख रहे हो, तो आप हर रोज द हिंदू पढ़ोगे जब से ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, प्लस आप करंट अफेयर्स मैगजीन पढ़ोगे। तो करंट अफेयर्स मैगजीन तो आपको पढ़ना ही है। द हिंदू आपको इसलिए पढ़ना है बिकॉज अगेन आपकी रीडिंग स्पीड बढ़ेगी, ठीक है ना। रीडिंग स्पीड पे काम चलने लगेगा, आपकी कॉम्प्रीहेंशन मतलब कॉम्प्रीहेंड करना, अंडरस्टैंड करना बढ़ेगा। एंड जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपको करंट अफेयर्स मैगजीन में से भी समझ आने ज़्यादा अच्छे से हो जाते हैं, राइट। तो करंट अफेयर्स मैगजीन कौन सी पढ़ें? दृष्टि IAS पढ़ सकते हो, प्रतिज्ञा दर्पण, IAS विजन, कोई भी जो भी आपको अच्छी लगे, इनके भी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आपने क्या करना है, दिसंबर 2021 से उल्टा पढ़ना स्टार्ट करना है। दिसंबर वाली पहले पढ़नी है, ठीक है, फिर नवंबर, फिर मतलब उल्टा जाना है, एंड देन यू हैव टू गो टिल जनवरी, बिकॉज फिर अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा ईजी रहेगी, क्योंकि आपको न्यूज़ का जो अपडेटेड वर्जन है वो पढ़ने को मिलेगा। करंट अफेयर्स बहुत डिफिकल्ट है, बट मैं आपको बता देती हूँ कि मिस्टेक्स जो अवॉइड करनी चाहिए, नंबर 1 मिस्टेक जो अवॉइड करनी चाहिए वो ये मिस्टेक है आपकी कि द हिंदू जो है वो आप जनवरी 2021 से मतलब अब पढ़ना स्टार्ट करो। तो 2022 के अंदर आप 2021 के न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं करना है, बिकॉज हमें नोट्स भी चाहिए। और ये जो हमारी मैगजीन्स है यहाँ पे, ये हमारे नोट्स बनेंगे, ठीक है ना। इसके अंदर हम अंडरलाइन कर लेंगे, इसके अंदर ही जो हमें इंपॉर्टेंट लग रहा है वो मार्क कर लेंगे। अगर कोई बड़ा पैराग्राफ है और उसके अंदर से हम शॉर्ट पॉइंट्स निकाल सकते हैं तो वो हम साइड पर लिख लेंगे। तो ये हमारे नोट्स
एज एक्ट करेंगे। तो द हिंदू 2021 से पढ़ना एक बहुत ही स्टूपिड काम है अगर आपने पहले नहीं पढ़ा 2021 से, ठीक है। नंबर 2 मिस्टेक इज नोट्स ना होना। तो नोट्स होने बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने हैंड रिटन नोट्स बना रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है। अगर हैंड रिटन नोट्स बनाने का टाइम नहीं है या आता नहीं है तो आप डायरेक्टली अपनी जो ये मैगजीन है इसको एज नोट्स प्रेफर कर सकते हो, ठीक है ना। अनदर थिंग दैट आई वांट टू टेल यू इज, अगर करंट अफेयर्स अच्छे से करने हैं कि एक तो द हिंदू अभी पढ़ना स्टार्ट कर दो, बिकॉज फिर आपको करंट न्यूज़ का पता चलने लग जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, जो आपको चीज़ करनी है वो ये कि आप थोड़ी सी बैकग्राउंड रिसर्च करने लग जाओ। जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही तो धीरे धीरे आपको समझ में आने लग जाएगी। इट इज़ ग्रेट अगर आप 2 फ्रेंड्स क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे हो कि आप कुछ और के बारे में रिसर्च कर लो और कोई और किसी के बारे में कर ले, एंड देन यू डिस्कस विद ईच अदर। येस, यू कैन हैव अ स्टडी बडी। आई लीव अ लिंक वेर इन यू कैन फाइंड योर स्टडी बडीज, ठीक है ना, एक फोरम पे, तो वो आप कर सकते हो। बैकग्राउंड रिसर्च करना स्टार्ट कर दो, एंड प्लस बार बार रिवाइज करना। रिविजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मत सोचना कि करंट अफेयर्स आपको एक बार पढ़कर याद हो जाएंगे, नहीं होने वाले। आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। सो अगर आप वीकडेज में कुछ करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो तो वीकेंड्स पे आप उनको रिवाइज करो। एंड ट्राई टू पिक अप द हिंदू, मतलब आप ट्राई करो कि 30-40 मिनट्स में आप द हिंदू पढ़ो, एंड बाकी 30-40 मिनट्स आप हर रोज़ मैगजीन पढ़ने को दो। जो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिले उसमें भी आप अपनी मैगजीन पढ़ो, राइट। एंड ट्राई टू टेक आउट प्रिंट आउट। नहीं तो अमेजोन पे भी इनके बंच अवेलेबल होते हैं, वहाँ से भी आप बाय कर सकते हो, थोड़े आपको रीजनेबल पड़ जाते हैं। हाउ मच टाइम यू नीड टू गिव, कितना टाइम देना पड़ेगा। लुक, मिनिमम 2 to 3 आवर्स, लाइक 3 आवर्स अगर आप दे सकते हो तो बहुत ही अच्छा टाइम है ये, ठीक है ना, जिसके अंदर से 1 आवर आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। देखो, न्यूज़पेपर पढ़ने में आपको लेस देन 40 मिनट्स ही लगेंगे, बिकॉज हम यहाँ पे नोट्स नहीं बना रहे हैं। मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आप डायरेक्टली मैगजीन में ही नोट्स बनाएंगे, ठीक है ना, और सिर्फ यहाँ पे न्यूज़पेपर आप पढ़ेंगे, ठीक है ना। न्यूज़पेपर पढ़ने के बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है। मैं दोबारा से आपको बता दूं, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो नंबर 1 आपकी रीडिंग स्पीड इंक्रीज होती है। रीडिंग स्पीड इंक्रीज होने से ज़्यादा जो सबसे बड़ी चीज़ होती है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है आपकी, ठीक है ना, जो कि आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, बिकॉज वोकैबुलरी इंप्रूव होती है आपकी। एंड रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग का जो हेल्प है वो ये मिलता है कि क्योंकि आपका पैसेज बेस्ड एग्जाम है तो इसलिए आपको बहुत हेल्प मिलती है, राइट। तो आपने न्यूज़पेपर तो हर रोज़ पढ़ना ही है, ठीक है ना। और 2 आवर्स जो आपके पास बचते हैं वो आप एनी वन टॉपिक ऑफ एनी सब्जेक्ट कर सकते हैं, वो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। नाउ वन मोर थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट रिविजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो आप जो ड्यूरिंग द वीक आप न्यू टॉपिक्स पढ़िए, एंड ऑन वीकेंड आपको रिवाइज करना है। ऑन वीकेंड्स यू कैन स्टडी न्यू टॉपिक्स ऑल्सो, बट आपको जो पहले पढ़ा है उसको रिवाइज करना है। रिविजन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बार बार रिवाइज करोगे तभी आप उसको याद कर पाओगे, रिटेन कर पाओगे। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ टू स्टडी, ठीक है ना, हाउ टू स्टडी फॉर द एग्जाम। सो बेसिकली आप अपनी प्रेपरेशन को 2 स्टेजेस में डिवाइड करोगे। स्टेज 1 के अंदर रीडिंग थ्योरी। सबसे पहले क्या करोगे, यू हैव टू रीड थ्योरी। मतलब रीडिंग थ्योरी का मतलब होता है कि इस वाले पार्ट के अंदर आप पहली बार किसी टॉपिक को पढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली आप एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिठाने की कोशिश करोगे अपने दिमाग में उस टॉपिक की। अंडरस्टैंडिंग के अंदर साथ साथ आप उसके नोट्स भी बनाओगे, ठीक है ना। नोट्स आप बुक में ही बनाओगे या जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हो उसको, ठीक है। सेपरेट अपने रजिस्टर में नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अंडरलाइन करोगे, मार्क करोगे। अगर एक पैराग्राफ में आपको ऐसा लग रहा है बहुत लंबा है और उसके शॉर्ट पॉइंटर्स बन सकते हैं तो वो शॉर्ट पॉइंटर्स भी बना लोगे, ठीक है ना। नोट्स बनाने इसलिए ज़रूरी है बिकॉज आप बार बार रिवाइज करोगे, तो रिविजन बहुत ज़रूरी है। अगर आप लेस टाइम में रिवाइज करना चाहते हो तो यू नीड टू हैव योर नोट्स, राइट। दैट इज मेकिंग नोट्स हो गया। उसके बाद अटेम्प्टिंग एमसीक्यूज। देखिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस, ठीक है ना। प्रैक्टिस अगर आप करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको थ्योरी अप्लाई करनी आ गई। अप्लाइंग थ्योरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो प्रैक्टिस होनी बहुत ज़रूरी है। आपको एक स्पीड बनानी बहुत ज़रूरी है। एंड थर्ड, आप अगर कोई मिस्टेक कर रहे हो तो अगर आपको लगता है कि मुझे थ्योरी दोबारा पढ़नी है तो आप वो पढ़ सकते हो। तो यू नो, प्रैक्टिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू कैन नॉट मिस आउट ऑन दैट। रिवाइजिंग ऑन वीकेंड्स, मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि रिविजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आप फर्स्ट रीडिंग के टाइम पे अपने अच्छे खासे नोट्स बनाते हो तो आपका रिवीजन में जो टाइम है वो कम लगेगा। तो प्लीज़ नोट्स बनाइए, मार्क करिए, अंडरलाइन करिए, शॉर्ट पॉइंटर्स बनाइए। अगर कुछ एक्स्ट्रा आपको ऐड करना है तो पेजेस अटैच कर एक्स्ट्रा उसमें ऐड कर लीजिए, ठीक है ना, बुक में। तो एक जगह ही आपका सब कुछ होना
चाहिए। स्टेज 2 के अंदर आप क्या करेंगे, तो स्टेज 1 इज बेसिकली आपको जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना है। नाउ व्हेन आई से जल्दी से जल्दी, इट डजंट मीन कि आप कुछ भी करके सिलेबस खत्म कर दोगे, आपको कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा पर आपका मेन एम है सिलेबस करना। नो, ऐसा नहीं है। कंप्लीटिंग द सिलेबस का मतलब है आप प्रॉपरली सिलेबस कंप्लीट करोगे। एंड हमारा सिलेबस एक टॉपिक तब कंप्लीट माना जाएगा जब हमने उसको अच्छे से समझ लिया है, जब हमने उसके नोट्स बना लिए, प्रैक्टिस कर लिया और उसको रिवाइज भी कर लिया। ठीक है, वंस योर सिलेबस इज कंप्लीट, तो हमारी स्टेज 1 कंप्लीट हो गई। हम स्टेज 2 पे आ गए, जिसके अंदर हम 3 चीजें करेंगे। क्या करेंगे, एक तो रिविजन, वी आर गोइंग टू रिवाइज, ठीक है ना, अटेम्प्ट मॉक टेस्ट, ठीक है, अटेम्प्ट मॉक टेस्ट, एंड फिर हम मॉक टेस्ट को एनालाइज करेंगे। वी आर गोइंग टू एनालाइज द मॉक टेस्ट, एंड जो हमें टॉपिक्स, वीक टॉपिक्स हैं, वो ढूंढेंगे हम अपने, और हम अपने वीक टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स बनाएंगे। क्या करेंगे, वीक टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स बनाएंगे। ठीक है, नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम। रिविजन करना है, रिविजन कैसे करना है ये समझ लेते हैं। देखिए, रिविजन करने के लिए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ऑब्वियसली थ्योरी पढ़ें जिसके आपने नोट्स बनाए हुए हैं, ठीक है, प्लस रैंडम क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है ना, चाहे पहले भी आपने वो क्वेश्चन सॉल्व करें बट आप रैंडम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप ये भी कर सकते हैं कि जब फर्स्ट टाइम आप किसी को चीज क्वेश्चंस को सॉल्व करें, आपको जो क्वेश्चंस डिफिकल्ट लगते हैं या जिन क्वेश्चंस को आपने रॉन्ग अटेम्प्ट किया, आप उनको मार्क कर लीजिए एंड टेस्ट के टाइम पे आप यही रैंडम क्वेश्चंस सॉल्व करें। सो रिविजन के अंदर थ्योरी पढ़नी है और रैंडम क्वेश्चंस एज टेस्ट सॉल्व करने हैं। मॉक टेस्ट जो है वो आपने सॉल्व करना है स्टार्टिंग के अंदर। देखिए आपके पास कितना टाइम है, आप 1 to 2 मॉक्स अ वीक कर सकते हैं जब एग्जाम पास आ गया, एंड उससे पहले 1 मॉक अ वीक वुड बी इनफ। और मॉक को एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज हमारा मेन पर्पस ऑफ सॉल्विंग मॉक क्या है, पर्पस क्या है मॉक्स का सॉल्विंग, पर्पस ऑफ सॉल्विंग मॉक्स ये है कि हमें सबसे पहले पता चल जाए कि हमारी कोई वीकनेस तो नहीं, ऐसा टॉपिक जो हमारा वीक है कोई, ठीक है ना, नंबर 1। नंबर 2, हम कोई सिली मिस्टेक तो नहीं कमिट कर रहे हैं। नंबर 3, हमें पता होना चाहिए कि हमें टाइम कैसे मैनेज करना है। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट वाला वीडियो जो मैंने क्लैट वालों के लिए किया हुआ है, प्लीज वो चेक कर लीजिएगा। नेगेटिव मार्किंग कैसे हैंडल करनी है, दैट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये सब चीजें आपको हैंडल करनी, कैसे क्या करना है, वो कब आएगा, जब आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे। वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स दैट स्टूडेंट्स कमिट इज अभी तक उनका सिलेबस पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है एंड वो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं एंड वो उनको मोटिवेट नहीं कर रहा है, इंस्टेड वो डिमोटिवेट कर रहा है। आप जब तक आपका सिलेबस खत्म नहीं हो रहा है, इंस्टेड यू कैन गो फॉर सेक्शनल टेस्ट। ठीक है ना, सेक्शन वाइज टेस्ट आप ले सकते हो, टॉपिक वाइज टेस्ट ले सकते हो जब तक सिलेबस खत्म नहीं हुआ है। ठीक है ना, तो अपने आप को डीमोटिवेट करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना, हाँ ऑब्वियसली करंट अफेयर्स है, थोड़ा बहुत इधर उधर आपके टॉपिक्स रह गए, तब आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो, बट अपने दिमाग में रखना कि हाँ मेरे कुछ टॉपिक्स नहीं हुए। एनालाइज करना मॉक टेस्ट को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई ऑलरेडी डन वीडियोस दैट हाउ यू शुड एनालाइज। आई लीव अ लिंक ऑफ द वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। Now I want to give you a suggestive schedule। ये मंथली स्केड्यूल है, ठीक है ना, मंथली स्केड्यूल। वैसे मैं आपको सारा समझा चुकी हूँ कि किस ऑर्डर में, किस सीक्वेंस में आपको करना है, बट देन ऑल्सो इफ यू वांट टू क्रिएट योर ओन स्केड्यूल, create your own schedule which is completely fine। what I want you is that you should plan। ठीक है ना, एक प्लान होना चाहिए, एक स्मार्ट प्लान होना चाहिए। ठीक है ना, तो आई विल टेल यू द सीक्वेंस। जनवरी 2022 के अंदर जितने भी दिन बचे आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फिगर्स ऑफ स्पीच और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन खत्म कर देना है। इसका मतलब हम इंग्लिश और लीगल रीजनिंग का बहुत पार्ट खत्म कर देंगे जनवरी के अंदर। फेब 2022 के अंदर हम क्रिमिनल लॉ, टॉर्ट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स को खत्म कर देंगे। इसका मतलब लीगल रीजनिंग खत्म हो जाएगी हमारी फेब के अंदर, तो इंग्लिश और लीगल रीजनिंग डन हो जाएगी हमारी 2 महीने में। उसके बाद हम क्रिटिकल रीजनिंग पे आएंगे। क्रिटिकल रीजनिंग मार्च 2022 के अंदर आप देखोगे। आई नो यहाँ पे आपके बोर्ड्स हैं, बट मैं बहुत आराम से आपको क्लियर कर चुकी हूँ कि अगर बोर्ड्स में थोड़ा सा कम भी स्कोर कर लोगे तो आई डोंट थिंक इतनी प्रॉब्लम है। अप्रैल 2022 के अंदर कंप्लीट रिविजन प्लस मैथ्स और DI। नाउ आई वांट टू टेल यू, ये जो अप्रैल का मंथ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज शायद मैं अज्यूम कर रही हूँ कि हमारा मोस्ट प्रॉबेबली यहाँ पे हमारे बोर्ड्स फिनिश हो चुके होंगे। ठीक है ना, तो बोर्ड्स अगर हमारे फिनिश हो जाते हैं यहाँ पर मार्च के अंदर ही, और अप्रैल में थोड़ा टाइम भी चलता है, अगर आपको 20 डेज या 15 डेज भी मिलते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इन डेज में आपको चाहे 15 आवर्स की सिटिंग देनी पड़े और अपना सिलेबस कंप्लीट भी करना पड़े और रिवाइज भी करना पड़े, आप करोगे।
एंड बहुत ज़्यादा बच्चे करते भी हैं। मेरे पास एग्जाम्पल है जिन बच्चों ने 30 डेज के अंदर पूरा सिलेबस स्क्रैच से स्टार्ट करके एंड तक ख़त्म किया और रिवाइज भी किया, तो आप भी कर सकते हो। तो हमारा अप्रैल का मंथ बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे जो वन मेजर थिंग है कि हम जितना मेजर सिलेबस पहले ख़त्म कर सकते हैं वो हमारे लिए बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। तो वो आपको करना है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि दी कोविड दोबारा आ गया है, स्कूल्स बंद हो गए हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बंद हो गए, तो एग्जाम क्या पता थोड़ा आगे हो जाए। लुक, आपको अज्यूम नहीं करना, डोंट अज्यूम, ठीक है ना। आप अज्यूम मत करिए, आप अपने दिमाग में यही डेट्स लेकर चलिए एंड स्टडी करिए, ठीक है। ये मत करिए ओ लेट्स चिल, यू नो एग्जाम आगे चला जाएगा, क्या पता क्या होगा, ठीक है ना। अगर हो भी जाएगा तो वो आपके बेनिफिट में, आप अपने दिमाग में वही डेट्स लेके चलिए जो होनी चाहिए, और इस चीज का वरी मत करिए अगर आगे हो गया। अगर आगे हो गया तो हो गया, अगर नहीं हुआ तो नहीं हुआ। यू शुड बी फुली प्रिपेयर्ड, इस चीज पर सोचने की कोई जरूरत नहीं है। Need to remember that current affairs part, for the current affairs thing you have to take out some time, like 1 hour or anywhere, even if you have to get up early or sleep late, you have to take out that time. Look, I am not saying that cracking CLAT in 4 months from zero is really easy. You have to go out of your comfort zone, you have to create a plan, and then you have to achieve your goals, right? As simple as that. So guys, that's it for today's video. I hope this video is helpful for you, and if it is helpful, please like कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके मेरे से डिस्कस करो कि what problems are you facing, how can I help you, to make sure that you get a seat in LU, right? Comment करके मुझे बताओ. You can chat with me on my Instagram, that is at I am Logiri. And also guys, you can book a paid session with me, that would be a one-on-one session. You can find the details in the description box below. So yeah, that's it. Logiri signing off. You guys keep on studying.